Good evening, students. Good evening, ma'am. Anjana has joined. Yes, ma'am. Okay, you have asked me a few questions. That questions will be solved after completing mean, median, mode, all the three positional averages. Only then you will be able to understand for which good we need which type of average, and we will be able to recognize which is the best way of measuring average. Am I clear? So we will be doing it afterward. Before that, we are to do कंबाइंड मीन. ये टॉपिक हमने किया नहीं है, so that's why you are unable to understand that question which is there in the NCERT book. So today we are going to do this combined mean. If two series are there, how to find out combined mean? I have written here the formula for two groups combined mean. N1 number of items in group 1 or series 1, and 2 number of items in series 2, and x1 bar arithmetic mean of group 1 and x2 bar arithmetic mean of group 2, and x bar 1 2 is the combined mean. So we are going to start this topic in the middle. All other students will also join. Your time has started. So we are going to start this. This is the combined mean of two series. If there are three series, so then we can write 1, 2, 3, N1, X1 bar. We can extend the same formula, X2 bar, N3, X3 bar upon N1 plus N2 plus N3. But in your syllabus, this question is there. So I'm going to do these type of questions which are in your syllabus. Right, Anjana? Yes, Shruti, you have joined with it? Shruti, Mohit? Yes, ma'am. Very good. So Komal is also there, Manjot is also there. So we are going to start with this topic today. It's very important one, और इसमें से 4 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन अगर वो पूछेगा तो आएगा. So it is very difficult to write down the statement on the board. I will be speaking out the statement, you will be listening, and mathematically I will write on the board. देखो, एक सीरीज है जिसमें मैन की इनकम है, वोमेन की इनकम है, या बॉयज की हाइट है, गर्ल्स की हाइट है, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट है. तो एक सीरीज को अगर बॉयज की हाइट है उसको हमने अगर फर्स्ट सीरीज ले लिया और गर्ल्स की को सेकंड सीरीज लिया, तो x1 और x2 नाम देंगे उनके मीन को हम. राइट? सो आई एम गोइंग टू रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट. It is written like this: the mean height of 25 male workers in a factory is 61 centimeter. So let N1 number of male workers. सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन में से हमने N1 लिख लिया. मेल वर्कर्स है 25. मीन हाइट ऑफ male workers is given to be 61 centimeters. So this is N1 25, X1 bar 61 centimeter. Second line is mean height of 35 female workers. So that means N2 number of female workers. You just see, we have to define it. कि मैन को हमने x1 बोला है, वोमेन को हमने x2 बोला है, वो थे 25 और ये है 35 फीमेल वर्कर्स. तो x2 बार is also given 58 centimeters. It is a general fact that बॉयज की हाइट जो है मेल की लंबी होती है और गर्ल्स की कम. तो मैंने हाइट की बात की, इनकम की बात भी एग्जाम में कह सकता है वो. तो हमने 61 सेंटीमीटर 58 ये हमें डाटा गिवन है. तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड मीन हाइट. कंबाइंड मीन हाइट, तो इसको हम नाम दे देते हैं
x bar 1 2 का. So let us write down the formula. Now the things are very simple. We are to write down the formula, we are to calculate it and do everything. All the entries and variables are given to us. What is N1? 25. What is X1 bar? X1 bar 61. What is N2? 35. What is X2 bar? 58. And in the denominator, addition of both the numbers. So this is the way to write down. So calculation is yours. You can multiply it and get the answer. When we multiply, we are going to get here 1525. In the denominator 60. 25 से तो direct multiply हो जाएगा with this number. 290. चेक कर लेंगे आप कैलकुलेशन, मैडम बोलते बोलते कर रहे हैं. So if there is any doubt or any calculation you are also to do, you can add it. 5553. 3,555 divided by 60. So let us find its answer. Three 555 divided by 60. 65s are 300. 66 are 360. So 5 is we are letting it to divide. 55, bring down this 5. 8 6 are 48. 9 6 are 54. So 540. 1. We will place 1 0. 16 twos are 120, 0, 3, and 59.25 is the combined mean coming to be combined mean height 59.25 centimeters. This is the combined height. So you see, if we know the formula of the combined mean, then we can fill all the values. In these values, he can skip any value. वो ये वाली value दे सकता है, ये find out करनी हो सकती है, ये दे सकता है, ये find out करनी हो सकती है. So he will be giving all other values except the one value which you will be finding out. Is this question clear to everyone? You can see it. Board is clear? Yes. Okay. Yes, ma'am. Is it clear, Komal? Yes. Okay. Good. So let us start with the second type, जिसमें कुछ और निकालना होगा हमें. तो वो शुरू करते हैं. देखो, या तो वो इनकम की बात करेगा, या फिर वो हाइट की बात करेगा, या फिर वो एज की भी बात कर सकता है ना, हस्बैंड वाइफ के एज की बात. हाँ जी मैम, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना. हाँ जी मैम, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. बिल्कुल ठीक है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन. कंबाइंड मीन ऑफ टू सीरीज अगर निकालनी है तो n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. एक्चुअली दिस फॉर्मूला वी हैव कंप्लीटेड इन क्लास 7th एज वेल. उसमें इसी को मैथमेटिकली नहीं स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है, तो उसमें हम इस क्वेश्चन को करते हैं. तो मैं आपको बता रही हूँ n1 नंबर ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑब्जर्वेशंस, n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड सीरीज, यानी कि कितने मेंबर एक सीरीज में है, कितने मेंबर दूसरी सीरीज में है. x1 बार पहले का मीन कितना है, दूसरे का मीन कितना है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. मैंने इस फार्मूले में जो भी कुछ लिखा है उसका मीनिंग लिखा है सबसे पहले. अब हमने लिखा n1 वर्कर्स है जो मेल वर्कर्स 25, n2 फीमेल है 35, टोटल है 60 वर्कर्स इन द फैक्ट्री. 25 मेल है, 35 फीमेल है. जो हाइट है वो है इसकी मीन हाइट, यानी कि हर किसी की 61 नहीं है, किसी की 65 हो सकती है, किसी की 58, एवरेज जो है 61 है, और लेडीज की जो है वो है 58. तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू भर दी. 25 को मल्टीप्लाई किया x1 बार से, 35 को मल्टीप्लाई किया x2 बार से और डिवाइड किया n1 प्लस n2 से. सो दिस इज द फॉर्मूला. We will be going to do second question. उसके अंदर आपको बाकी
बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन के अंदर हमने उस दिन सिंपल क्वेश्चंस किए थे, कंबाइंड वाला सीरीज वाला नहीं किया, सिंगल सीरीज का किया था। तो अब आप डबल सीरीज का करेंगे। 3 सीरीज का आपके सिलेबस में नहीं है, सीनियर क्लासेस में इट मे बी देयर। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सेकंड स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट? द एवरेज इनकम ऑफ 100 laborers is ₹20। ओके, 100 लेबरर्स। तो पहली सीरीज में हम ले रहे हैं 100 वर्कर्स। N1 कितना आ गया हमारा? 100 वर्कर्स हमें दिए हुए हैं। N1 100 वर्कर्स। अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 वर्कर्स सीरीज इज गिवन टू बी ₹20। पर डे होगा या पर आवर होगा? इट इज नॉट रिटेन। If the average income of all the 150 workers, total N1 plus N2 is given to be 150, क्योंकि उसने बोला है total 150 workers का जो मीन है that is ₹25, यानी कि x bar 1 2 is equal to ₹25। फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिए। पहली सीरीज का 20 है, 100 वर्कर्स है, टोटल वर्कर्स है 150, कंबाइंड मीन है 25। तो ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग 50 वर्कर्स। तो 50 वर्कर्स क्या है? सेकंड सीरीज के। x2 बार क्या है हमने ढूंढना है, हमें नहीं पता है। सो दिस इज मिसिंग, ऑल अदर थिंग्स आर गिवन। सेम फार्मूला, सेम क्वेश्चन है, सेम कंबाइंड मीन है। लेट अस राइट ओवर हियर 1 2 N1 x1 बार सिमेट्री में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वी कैन रिमेंबर इट इन ए वेरी गुड मैनर। N1 plus N2 in the denominator, x bar 1 2 is given to be 25, यहाँ 25 लिखेंगे। N1 नंबर है 100, x1 बार है 20 और N2 है 50। ये हमें नहीं मालूम x2 बार हाउ मच इट इज, वी डोंट नो। एंड व्हाट अबाउट टोटल 150। तो इस 150 को अगर हम इधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई में जाएगा नेचुरली। मल्टीप्लाई दिस टू 2000 50 x2 बार। सो कैलकुलेशन आप देखिए आप कैसे करते हैं। मैडम तो डिवाइड की टर्म को उधर ले गए मल्टीप्लाई में। सो 15 के टेबल पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 15 5 75, 37 3750 प्लस के 2000 आप इधर ले आएंगे, माइनस पे हो गए 50 x2 बार, बिकॉज वी नीड ओनली x2 बार। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट इट 0 5 7 1 और मल्टीप्लाई के 50 नेक्स्ट लाइन में will be changed into divide. So this will give you your answer. x2 बार approximately आ जाएगा आपके पास। This is the average income of series 2. 5 3s are 15 35. It is good one. More, you know, one income is there. Average income of series number 2, जो बाकी के 50 वर्कर्स हैं उनकी ज्यादा है सैलरी। आप सबको पता है किसी भी फैक्ट्री में सभी की सैलरी सेम नहीं होती, कुछ लोगों की ज्यादा होती है तो कुछ की कम होती है। तो इनकी 35 है, फर्स्ट सीरीज में 20 थी, एवरेज जो है 25 थी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन तो है जो सारे का सारा सेम था, हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो मेथड तो कभी भी चेंज नहीं होते। व्हाट चेंजेस? द लैंग्वेज। So if you understand the language, only then you are able to answer the question. जब भी वो 2 सीरीज की बात करेगा या तो वो कंबाइंड मीन पूछेगा, अगर कंबाइंड मीन नहीं पूछ रहा है तो वो सिंगल की सीरीज कंबाइंड मीन दे देगा और सिंगल सीरीज की पूछ लेगा। चाहे वो नंबर ऑफ वर्कर्स पूछे, चाहे वो x1 बार पूछे, चाहे वो x2 बार, या फिर वो लैंग्वेज को ट्विस्ट करके कुछ और बनाने की कोशिश करेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। लवप्रीत, any doubts regarding this question? This is a special question. इसके बाद मिसिंग वैल्यू वाला भी हमने करना है, so we must do it in a speed so that we can complete our work. लवप्रीत, कुछ पूछना है बेटे?
नो मैम। गुरप्रीत, क्लियर है बच्चे? These two methods were same. So now we are coming to the next part. मैंने आपको इनके मीनिंग बताए ताकि जब आप काम करो तो आपको पता चले कि how we are going to use these things. अब मैं ये रब कर रही हूँ मीनिंग इनके, सिर्फ फार्मूला रहने दिया मैम ने. Like I'm going to read the next statement from the question which has come in the exam. Question is, the mean annual salary paid to employees of a company, all employees, was rupees 500. That means X bar 1, 2 is 500. What is this? Mean salary of all the workers. यानी कि चाहे लेडीज है, चाहे जेंट्स है, मेल है, फीमेल है, सबका टोटल, सभी का. तो ये क्या हो गया? X bar 500 rupees. The mean salary of male and female was paid rupees 520, 420. तो एक है 520, एक हमने ले लिया 520, मेल्स फीमेल्स रुपीज 420 रिस्पेक्टिवली. उसने लिख के दिया है, ये किसका है? मेल्स का, और ये है फीमेल्स का. रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले मेल्स का है मंथली इनकम एवरेज, एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ सैलरी ऑफ मेल्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ सैलरी ऑफ फीमेल्स. लाइक दिस इज राइटिंग, determine the percentage of males and females employed by the company. अब इसने कोई भी और वैल्यू हमें नहीं दी है, हमने इसी वैल्यू को यूज करके we are to answer the question. So whatever we are having, we will go further according to that. Just see n1 x1 bar n2 x2 bar upon n1 plus n2. So what is the combined mean given? 500. N1 we don't know. N1 we don't know. X1 bar 520 plus N2 X2 bar 420. So what total we are to take up? Percentage में निकालना है ना, तो 100 ही लेंगे टोटल वर्कर्स, क्योंकि हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, यानी कि 100 के पीछे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. वैसे उसने लिख के नहीं दिया कुछ भी, उसने कहा परसेंटेज निकालो, तो हम टोटल 100 लेंगे. ये है जो हमने खुद लिखा है. N1 plus N2 is equal to 100. Note this step. ये आपने खुद लिखा है. अब ये आपके जो है कॉमन सेंस की बात है. परसेंटेज का मतलब 100, टोटल 100 में से हमने मेल और फीमेल निकालने हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. अगर N1 जो है मेल है तो बाकी बचे फीमेल. पहले इसको डिवाइड वाली टर्म को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से उधर ले जाइए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 520 N1, 420 N2. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50,000, 520 N1, 420 N2. अब N1 प्लस N2 जो है हमारे पास 100 है, तो N1 उधर ले जाओ, N2 की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस N1. किसी में भी वैल्यू भर सकते हैं वैसे हम, क्योंकि हमें एक वेरिएबल चाहिए. यहाँ कितने हैं? 2 वेरिएबल. वी नीड 1 वेरिएबल टू आंसर द क्वेश्चन. पहले हम मेल या फीमेल एक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमने N2 में कन्वर्ट कर लिया, N2 को N1 में कन्वर्ट कर दिया. तो 520 N1 तो था ही, 420 में साथ 100 माइनस N1 लिख दिया हमने. ये यूज कर लिया. कहाँ से? जहां से हमने 100 लिखा, 100 में से N1 माइनस कर दिए. So let us calculate it. You see, this is 520 N1, 42,000. यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको 420 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करते. हर क्लास में ये मिस्टेक होती है. पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर N1 से. अब आपने क्या करना है? 42,000 इधर ले आइए, 50,000 माइनस 42,000, 520 माइनस 420, 100. So 42,000 minus किए 8,000, 100 N1. So what will be N1?
8000 अपॉन 100 80। N1 क्या है? नंबर ऑफ मेल कितने हैं? 80। बाकी बचे फीमेल्स, फीमेल बाकी बची ना, 100 में से मेल है 80, बाकी बची फीमेल 20। हो गया सवाल आपका। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस इज 80%, दिस इज 20%। दिस इज द क्वेश्चन which was given in a hidden way. So out of 100, 80 will be male, 20 will be female. गीता, आपको कुछ पूछना है बेटे अंजना इसमें से? No, ma'am. Okay, everyone, to everyone it is clear? अंजना, जो आपने क्वेश्चन पूछा वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड बनाया गया है, ठीक है? तो आपको उस क्वेश्चन को अब ट्राई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन आप कह रहे थे वो इसमें से है, ठीक है? नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगर कोई करेक्शन करनी हो, हमने कोई वैल्यू इनकरेक्ट हो, आई एम गोइंग टू डू द अनदर टाइप। दिस कंबाइंड मीन इज ओवर। कोई वैल्यू इनकरेक्ट हो गई और हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हमने टोटल किया, बाद में हमें पता चला कि हमने 2 एंट्री गलत ले ली। हमने क्या करना है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई एम गोइंग टू राइट दिस फॉर्मूला। तो अलजेब्रिकली भी हम इसको कर ही लेते हैं। कैसे बोल रहे हैं मैम? एक्स बार समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो मैंने अगर एक्स आई निकालना है तो दिस एन विल गो अप, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू एक्स बार कर दे, समेशन एक्स आई आ जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने जब टोटल कर लिया, मीन निकाल लिया, सम हमारा पूरा सॉल्व हो गया, अब हमें पता चला कि हमारी 2 एंट्रीज जो है हमने गलत लिखी थी या एक गलत लिखी थी। जब बोलते गए तो 45 को 54 पढ़ लिया या 29 को 92 पढ़ लिया, कुछ गलती हो गई। तो पूरा सम नहीं हम दोबारा से करना चाहते, इनकरेक्ट एंट्री को करेक्ट कैसे करेंगे? दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस इज अवर थिंग विच वी वांट टू डू। क्योंकि हमें एक्स बार भी पता है, हमें ये भी पता है मीन कितना निकाला और गिनती भी पता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन एक्स आई लिखेंगे। तो करेक्ट समेशन निकालने के लिए, करेक्ट समेशन एक्स आई निकालने के लिए हम इनकरेक्ट एक्स आई में से, समेशन एक्स आई में से रॉन्ग आइटम्स माइनस करेंगे और करेक्ट आइटम्स ऐड करेंगे। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई हमें जोर लगाने की या रट्टा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। गलत माइनस कर दो, राइट को ऐड कर दो। ये फार्मूला समझ आया मैम क्या बोल रहे हैं? बोर्ड क्लियरली दिख रहा है आपको बेटे? यस मैम। ओके, फिर से सुनो मैडम ने क्या बोला। कोई भी प्लस की हमने एडिशन की है, 2 लाख की है, 2,50,000 की है या 2,05,340 की है, कुछ भी किया है, हमें पता चला हमारा समेशन रॉन्ग है। इसको करेक्ट कैसे करें बिना कैलकुलेशन के किए? तो पूरा नहीं करना हमने कैलकुलेट, तो हम क्या करेंगे? रॉन्ग नंबर्स को माइनस कर देंगे, करेक्ट आइटम को प्लस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन हम इस वे का लेते हैं, फिर हम करेक्ट एक्स बार निकालेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। द मीन wage of 100 workers per day was found to be 80. X bar found to be 80. Number of workers was 100. This is given. इंग्लिश की लाइन थी, मैडम ने मैथमेटिकली लिख दी। उसने बोला था कि एवरेज जो है 100 वर्कर्स की 80 है, पर डे 80। So you need to find out, later on it was found that wages of 2 workers 93 and 59 was misread as 39 and 95। ये पढ़ लिया, 39 रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग पढ़ लिया, 39 93।
करेक्ट आइटम क्या थी? 93 एंड 59। मोस्टली इसी तरह की गलती हम करते हैं। 93 को 39 पढ़ लिया, 59 को 95। इट इज रिटन इन द बुक। ओके, सो दिस इज द सेकंड लाइन। फाइंड द करेक्ट मीन वेज पर डे। हर दिन की मीन वेज निकालो। अब हमें ये दिया है और ये दिया है दूसरी लाइन में। फर्स्ट लाइन में ये दिया था, तो हम पहले सोल्यूशन लिख रही है मैम। क्या निकालेंगे? समेशन एक्स आई। क्या होता है? एन एक्स बार, यानी कि 80 100 इंटू 80। 100 एन है, 80 ये है, तो समेशन एक्स आई आ गया 8000। पहली लाइन से तो ये निकला, बट बाद में डिस्कवर हुआ कि ये तो गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? करेक्ट सम एक्स आई निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे इनकरेक्ट एक्स आई, समेशन एक्स आई माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम। दिस इज द फॉर्मूला। 8000 है ये, और रॉन्ग आइटम्स है हमारी 39 एंड 95। प्लस कौन सी करनी है? 93 एंड 59। ये प्लस कर दी, वो दोनों ऐड कर दो, ये दोनों माइनस करनी है हमने, तो कैलकुलेट करेंगे। देखिए जरा, इन दोनों को ऐड किया, 93 59 152। इन दोनों को ऐड किया, 39 95 130। तो लिखना था 152, 134 माइनस करना है, 18 प्लस करेंगे इसमें, तो 8018। आप कैलकुलेट भी कर ले अपने आप। तो 8018 क्या आ गया? एक्स आई बार, विच इज करेक्ट है। एक्स बार निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? करेक्ट एक्स बार। लास्ट वाला स्टेप ये भूल जाते हैं बच्चे यहां तक करके कहते हैं हो गया आंसर, बट दिस इज नॉट द आंसर। वी वांट करेक्ट एक्स बार, तो इसको n से डिवाइड करना है। 8018 डिवाइडेड बाय 100। दिस हैज कम इन द पेपर in 2018. So students did up to here, but you should know you are to find out the actual x bar. सबसे पहले हमने क्या किया? n और x बार को मल्टीप्लाई किया, 8000 आ गया। फिर इसमें से रॉन्ग आइटम 2 है तो 2 माइनस करेंगे, 1 है तो 1 माइनस करेंगे, करेक्ट आइटम जो है प्लस करेंगे। 2 है, 3 है, जितनी भी है सारी गलतियों को माइनस कर देंगे, गलत वालों को ठीक वालों को ऐड कर लेंगे। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल रूल विच वी आर गोइंग टू डू। सो क्लियर? नोट करें बच्चे इसको भी। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके बाद हम करेंगे मिसिंग वैल्यूज। या वी डू हैव 10 minutes more. Quickly do it. फिलिंग द वैल्यूज वाला क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। ओके, यस, कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? अप टू हियर इट इज क्लियर चिल्ड्रन? बोलिए मंजोत जल्दी से, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। वी कैन वेट, वी आर नॉट इन ए हरी। यस मंजोत? नो मैम, नो। पूछना? ओके, श्रुति कुछ पूछना बेटे इसमें से? हाँ जी मैम, नो क्वेश्चन। All right, let us begin with the most important part, 6 marks question. That is, find the missing frequency if the table is given to us, xi values are given. That means discrete series or continuous series, whatever is given to us. So we are going to do missing frequency. In case of mean is given, frequency we are to find out. Marks. I'm going to start 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. It is in symmetry, I think up to 60, yeah. Up to 60 we have to go. Then frequency 12, 18, 27, blank, 17 and 6, only one.
तो जो मिस है उसमें F1 डाल देते हैं. दिस इज F. इसको ABC XYZ कोई भी नाम दे सकते हैं, मैडम ने फ्रीक्वेंसी ही लिख दिया. X bar is 28. This is given. So find the missing frequency. This is the question in front of you. 2 वाला आता है पेपर में ज्यादा. This is 1. पहले 1 वाला कर लेते हैं, फिर 2 वाला करेंगे. 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अब हमें X बार दिया है, फार्मूला हमें पता है. मैडम ने हमेशा आपको बोला है we will move with the step deviation method. It will reduce all the items numbers to 3 to 1, 1 to 3. So mid value निकाल लेते हैं. Mid value 10 by 2, 5, 10 plus 20 by 2, 15, 30 plus 20 by 2, 50 by 2, 25, 35, 45, 55, 2, 4, 2, 6 वैल्यूज है. तो हम इसके बीच में से कोई भी वैल्यू assumed mean ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस एज द assumed mean. ये क्यों नहीं ली? अरे आप पूछ सकते हो ना 35 क्यों नहीं ले रहे हम? 35 भी तो ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेंथ जो हमारी लेंथ ही हो जाएगी. कैलकुलेशन कर लेंगे हम, हो तो जाएगा, करके देख लेना. लेकिन इसको अगर इसके अलावा कोई और लेंगे तो ये नंबर 0 बन जाएगा. तो ये इजी हो जाएगा हमें करना. तो हमने इसलिए ये 25 लिया, 35 नहीं लिया. अब हम करने लगे हैं मिड वैल्यू में से हमने माइनस कर देना 25, क्योंकि हमने A लिया 25. What is this deviation? So let us write 0, -10, -20, 10, 20, 30. DI डैश क्या होता है? डिवाइड कर दो कॉमन फैक्टर से. What is that? 10 का टेबल. तो ये हो गया छोटा. -2, 1, 0, 1, 2, 3. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप Fi DI dash. Fi is frequency. Just see Dharam is always keeping finger on the frequency and multiply it with D dash, DI dash. क्यों फिंगर रखी है? ताकि हमारी मिस्टेक ना हो. So it is up to you. As you solve it, you should also keep the finger over here. This is 18. This is 0. Just see, this is so easy. 1 F1 आ गया. It is easy ना? ऊपर वाला 0 लिया, नीचे वाला 1 नहीं आना था. 17 2s are 34, 6 3s are 18. So let us do this. 18 से 18 कैंसिल हो गया. 34 में से 24 गए, 10 आ गए. 10 प्लस F1 आएगा. आप टोटल करके भी देख सकते हैं. ये 52 है, ये 42 है. 52 में से 42 गए 10 और F1 तो आना ही है. ये हो गया इसका समेशन Fi DI डैश. अब हम फार्मूला लगाएंगे. X बार assumed mean Fi DI dash upon n into common factor. So I told you to keep it in the brackets. What is the assumed mean? 25. What is Fi DI dash? 10 plus F1 divided by what is the n? Total values. Is it given? Let us see. n हमने निकाला नहीं है, तो हमने यहाँ पे टोटल करने के लिए क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है. इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे जितने भी हैं. जस्ट सी 80 प्लस F1. जब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो ये आ गया 80 प्लस F1. मल्टीप्लाई किससे कॉमन फैक्टर से करना है? 10. Here what is X bar? It is also given 28. अब हम क्या करेंगे? 25 प्लस का इधर लेके आएंगे. ये माइनस का हो गया. कैलकुलेशन आपकी है कि आप किस मेथड से इसको करते हैं. 10 प्लस F1 इंटू 10 अपॉन 80 प्लस F1. 28 माइनस 25 3. ये डिवाइड के 80 प्लस ये इधर चले गए F1, और ये 10 इंटू 10 प्लस F1 इधर है. कैलकुलेट कर ले, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. 3 8s are 240 प्लस 3 F1, 100 प्लस 10 F1.
ये 3 उधर ले जाए, 100 इधर ले आए, 240 माइनस 100, 10 F1 माइनस 3 F1, 240 में से ये गए 100, 140, 7 F1, so 140 by 7, 20. What is the frequency? Missing frequency 20. So this is the answer of this question. Now first we have gone through the algebraic treatment of the equation. Equation was given over here. Is it clear everyone? So let us see it again. एक बार एक नजर और डाल लेते हैं. यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, ब्लैंक था, तो हमने यहाँ पे F1 लिख लिया. इन सभी का टोटल किया, n आ गया 80 प्लस F1, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं, इन सभी को जोड़ा 80 आ गया, तो हमने प्लस F1 लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट है मिड वैल्यू निकाली, किसकी? मार्क्स की. कैसे? 10 प्लस 20 बाई 2, 20 प्लस 30, 0 प्लस 10 बाई 2, 30 प्लस 40 बाई 2, 40 प्लस 50 बाई 2, 50 प्लस 60 बाई 2. तो जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, assumed 25 में से we got this. Then minus 2, 1, 2, 3, multiply किया, this part has come. So we have gone through the explanation. So you can write down, this is the calculation in which students sometimes find puzzled. So equation how to solve according to the 9th and 10th standard level. So you can find it out. चेक कर ले, सभी बच्चों को दिख रहा है? राइट लवप्रीत, इज इट ओके? ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का तब होगा जब इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आएंगी. राइट अंजना? मीन मीडियन मोड तीनों करके फिर हम बाद में करेंगे जो आपका क्वेश्चन है अंजना. राइट? क्वेरी विल बी कवर्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग मीन, मीडियन एंड मोड. मीडियन के बारे में मैम ने कल पिक्टोग्राफ्स बनाए थे, तीन कार्टून बनाए थे ना, मिडल वाली वैल्यू मीडियन. मैडम ने बोला हाफ ऑफ द आइटम्स ऑन लेफ्ट साइड, हाफ ऑफ द आइटम्स ऑन राइट साइड. असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमने उनको लिखा था. और मोड क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम. ठीक है, अभी हम पहले ये कवर कर लेंगे missing frequency wala. After that we will complete the median topic. Okay, that's all for today students. Any doubts you can inquire. Yes, anything else you want to ask regarding today's work? No, ma'am. Everything is clear? Yes, ma'am. All right. Thank you. Have a nice day, children. Thank you, ma'am. Ma'am. Welcome.